Welcome back, everyone. So we were discussing our second chapter, biological classification. In the last video lecture, we have discussed the various classification and their kingdom system, along with the scientists and their contribution, right? So we have discussed 2 kingdom, 3 kingdom, 4, 5, and 6 kingdom system of classification. But the kingdom system that we follow and it is widely accepted is 5 kingdom system of classification, which was proposed by R.H. Whittaker, right? The reason behind that we accept this classification because the criteria that he took on the classification, on his classification, were appropriate characters, and he analyzed all internal and external features of living organisms. Based on that, he classified in a specific form. Who? R.H. Whittaker, right? So whatever the classification of organism or kingdom system classification we discuss are 5 kingdom system of classification, right? But yet we need to know all the kingdom system of classification, and remember which one is the artificial, which one is the natural system of classification we have discussed. So today we are going to discuss in details one by one all the kingdom system of classification. Okay, so starting with our first kingdom system of classification, we will discuss Protista today in detail. Protista, we will discuss today Protista. Who proposed Protista and in which kingdom? So Protista was proposed by Ernest Haeckel in 3 kingdom system of classification, right? So you know there's a Protista. Okay, one more thing. The kingdom Animalia and the kingdom Plenty, these 2 kingdoms, that we have separate chapter for that. Okay, so kingdom Animalia, we have animal kingdom chapter in zoology, which will be taken by your other teacher, and we have the kingdom Plenty, plant kingdom. After completing this chapter, we will go to that plant kingdom. All right, so we are not going to discuss in here, so because we have separate chapter for that. Okay, so today we will discuss Protista. So Protista includes all unicellular eukaryotic organism. This is U, okay? So we have discussed unicellular माने कि इसका मतलब क्या है? Uni मतलब एक, uni माने eta, okay? Cellular मतलब a group of cell. So one cell, in simple way to understand, one cell form any living organism. Okay, it is called as unicellular. For example, microorganism. Microorganism बहुत छोटे organism होते हैं. We cannot able to see with our naked eyes, right? So organism ही इतना छोटे होते हैं तो उसका cell कितना होंगे? So of course unicellular, okay? Eukaryotic means early formed cell, जो evolve होके cell form हुआ उसको eukaryote बोलते हैं हम लोग. So in Protista we find all unicellular eukaryotic type of organism. Let me change my ink. Again, Protista is subdivided into इसका फिर सब डिवीजन होते हैं प्रोटिस्टा का. It is subdivided into 3 groups. Photosynthetic group, protozoa, photosynthetic protozoa, and saprophyte. Saprophyte मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज एरिया में ग्रो होते हैं. Any organism which grow on a decomposed area, ठीक है? Those organism includes under saprophyte.
Okay. So the kingdom Protista is subdivided into three groups: photosynthetic, protozoa, and saprophyte. Photosynthetic is again divided into Chrysophyta, फाइटा। फोटोसिंथेटिक का फिर से सब डिवीजन होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज क्राइसोफाइटा, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे वेट। देन पायरोफाइटा होते हैं, इसका भी एग्जाम्पल लिखेंगे। उसके बाद यूग्लेनो फाइटा। ठीक है। सो पहले तो प्रोटिस्टा को डिवाइड किया गया इंटू थ्री ग्रुप: फोटोसिंथेटिक में, प्रोटोजुआ में और सेप्रोफाइट में। फोटोसिंथेटिक का मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर, दोस ऑर्गेनिज्म इंक्लूड अंडर फोटोसिंथेटिक। प्रोटोजुआ, इसको ये चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे प्रोटोजुआ को। I'll just give you the example, but for this you need to study in animal kingdom. Animal kingdom में separate chapter दिया हुआ है, वहाँ पे तुम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोटोजुआ को। लेकिन यहाँ में सिर्फ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। Saprophyte are those organisms which grows on a dead organic matter on a decomposed area. क्राइसोफाइटा का एग्जाम्पल, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक को फिर से डिवाइड किया गया। इट हैज़ अगेन सब डिविजन: क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, यूग्लेनोफाइटा। द क्राइसोफाइटा एग्जाम्पल वी टेक डायटॉम्स, इसको हम लोग गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। एल्गी क्या चीज़ है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम लोग प्लांट किंगडम में। पायरोफाइटा का एग्जांपल वी कैन टेक डाइनोफ्लैजेलेट। डाइनोफ्लैजेलेट को हम लोग बोलते हैं फायर एल्गी। ओके, एल्गी को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए सिर्फ नाम लिखो, ठीक है कुछ ऐसा एल्गी। यूग्लेनोफाइटा का एग्जांपल हम लोग लिखेंगे यूग्लेना। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं यूग्लेना, इसके ऊपर एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछते हैं। यूग्लेना एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जिसमें एनिमल्स का कैरेक्टर्स भी शो करते हैं और प्लांट्स का कैरेक्टर भी शो करते हैं, ठीक है। इसको एनिमल्स में भी रखा जाते हैं और प्लांट्स में भी रखा जाते हैं यूग्लेना को। सो वी विल सी दैट। सो व्हाट वी नीड टू नो इज वी नीड टू सी ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टर्स। ये सब ऑर्गेनिजम्स का स्पेशल कैरेक्टर्स को जानना है हम लोग को। सो फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्लासिफाई द एनी ऑर्गेनिजम्स into a specific form, ठीक है। So first of all we have classified all the kingdom system of classification. So first we are taking Protista kingdom, which was classified, which was placed in three kingdom system of classification by Ernest Haeckel. So we are taking Protista. Protista is again classified into photosynthetic, protozoan and saprophyte. Photosynthetic is again subdivided into Chrysophyta, Pyrophyta, Euglenophyta. So one example we take. So we need to see the characters of all those organisms one by one. Okay, we'll come to that later. So coming to protozoan. Protozoa is again subdivided into first Sarcodina. सार्कोडीना, इसका एग्जांपल देखेंगे थोड़े देर बाद। जू फ्लैजेलेटा, जू फ्लैजेलेटा,
ciliata, sporozoa. Let me tell you one thing, those who want to clear medical entrance, you need to clear your concept in first year. Not only in first year, second year maybe, but most of the question comes from first years. 60% क्वेश्चन कम्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर का सिलेबस थोड़ा लंबा होते हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं. ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. ऑल राइट. So biology में you know it's all about conceptual thing. The remembering part is the terms, scientist name. So ये सब तुम लोग when you study कैसे पढ़ोगे, लिख के पढ़ो, ठीक है. लिख के पढ़ना. 1 time, 2 time, at least 3 time try to write. At least 3 बार लिखिবলৈ ट्राई करिबा. लिखि पঢ়িবা তোমালোকে. যেটা পঢ়িবা এই নম্বৰ লিখি পঢ়িবা, তেতিয়া মনত থাকে, নহলে পাহৰি যাওঁ. So sarcodina example we take amoeba. AMOEBA amoeba. Flagellata we take example paramecium. I hope it is visible. Zoom करके देखो आप फोन में, अगर विजिबल नहीं है तो. Ciliata we take the example trypanosoma. Sporozoa we take the example Plasmodium species. ठीक है. इसको हम लोग ये चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे प्रोटोजोआ को. क्यों? क्योंकि इसका अलग चैप्टर दिया हुआ है एनिमल किंगडम में. जब फाइलम पढ़ोगे प्रोटोजोआ का फाइलम, वहाँ पे ये सब को तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा जूलॉजी में. ठीक है. यहाँ में सिर्फ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे. ऑल दिस कम्स अंडर प्रोटोजोआ ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम. ठीक है. प्रोटोजोआ का प्रोटिस्टा किंगडम में पाए जाते हैं. और प्रोटोजोआ को फिर से सब डिवाइड किया गया इनटू सार्कोडिना, जूफ्लैजेलेटा, सिलिएटा एंड स्पोरोजोआ. सो ये सब है उसका एग्जांपल. ठीक है. ये सब इम्पोर्टेंट है, जूलॉजी में पढ़ेंगे तुम लोग. ये जो प्लाज्मोडियम है, दिस आर द स्पीसीज. प्लाज्मोडियम का 4 स्पीसीज होते हैं. These microorganisms are responsible for causing malaria in human body. You might have known or you might have heard, तुम लोग को सुना होगा, मलेरिया मॉस्किटो, मच्छर जो होते हैं, it causes malaria, right? Mosquito causes malaria. You might have heard, but actually this is not correct. Mosquito actually brings malaria in our body. मॉस्क्यूटो क्या करते हैं, मलेरिया जो कोज करते हैं ऑर्गेनिज्म, उसको अपना बॉडी के साथ लाते हैं हम लोग का बॉडी में. ठीक है. एक्चुअली इट इज़ द प्लाज्मोडियम स्पीसीज विच कोज मलेरिया. ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं. जब मच्छर जाते, ये कहाँ, डर्टी डर्टी वाटर, डर्टी स्टेगनेंट वाटर में रहते हैं ये स्पीसीज. जहाँ पे पानी जमा रहते हैं, गंदा पानी, वहाँ में रहते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. तो मच्छर कहाँ अंडा देते हैं, पानी में अंडा देते हैं. तो जब मच्छर वहाँ में अंडा देते हैं, ये ऑर्गेनिज्म मच्छर का बॉडी में जाते हैं. इट एंटर्स इनटू द मॉस्किटो बॉडी. नाउ व्हेन मॉस्किटो कम्स एंड सक आवर ब्लड, इट रिलीजेस प्लाज्मोडियम स्पीसीज. तो मॉस्किटो का बॉडी का अंदर से हम लोग का सेल में जाते हैं, हम लोग का आरबीसी में वो लोग रिप्रोडक्शन करते हैं. इसका 4 स्पीसीज होते हैं. हाँ, प्लाज्मोडियम का. अभी हम लोग ये सब नहीं पढ़ेंगे, हम जस्ट बेसिक थिंग्स बता रहे हैं. तो ये हम लोग का सेल का अंदर में जाके आरबीसी में जाके रिप्रोडक्शन करते हैं, विच रिजल्ट्स इनटू मलेरिया. तो बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, यू शुड नो व्हेन समवन सेज मॉस्किटो कॉजेस मलेरिया, that is not actually correct. Actually mosquito is a vector that brings malaria into our body.
don't say brings malaria, it brings plasmodium into our body. As a result, the plasmodium causes malaria. इसका 4 स्पीसीज होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मेलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल। ये सब को तुम लोग एनिमल किंगडम चैप्टर जो जूलॉजी का पार्ट है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग इसको देखेंगे। और वो सेप्रोफाइट को, सेप्रोफाइट क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज एरिया होते हैं, डिकम्पोज पता होंगे, डिकम्पोज एरिया में जो ग्रो करते हैं वो सब ऑर्गेनिज्म को हम लोग सेप्रोफाइट में रखा जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ में लेते हैं एग्जांपल, ये सेप्रोफाइट का एग्जांपल, स्लाइम मोल्स, ठीक है। ये स्लाइम मोल्स को मैं तुम लोग को होमवर्क दूंगा, एनसीईआरटी बुक से पढ़ना, इसको मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ कैरेक्टर्स जानना है, ये सबको मैं पढ़ाऊँगा। तो स्लाइम मोल्स को तुम लोग खुद से पढ़ना, एक एक टॉपिक में तुम लोग को पढ़ने दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से पढ़ना स्लाइम मोल्स, ये सब जूलॉजी में है, यहाँ में नहीं पढ़ेंगे। सो वी विल टेक फर्स्ट डायटम्स, ओके, वी विल टेक फर्स्ट एग्जांपल डायटम्स ऑफ क्राइसोफाइटा, of photosynthetic, of protista. That's how you need to remember. Okay, कोई भी चीज़ पाना easy नहीं होते, so if you really want to crack medical you have to study very hard from now onwards. अभी से शुरू करो। So what is diatoms? When we talk about diatoms, first हम लोग का माइंड में क्या आना है, when we talk about diatoms, first what it needs to come in our mind, we have to know when we talk about diatoms, it is Protista kingdom of photosynthetic of Chrysophyta, okay, and its another name is golden algae. Why we call it as a golden algae, we will know. So अभी हम लोग diatoms को देखेंगे, dinoflagellate को देखेंगे, यूग्लिना को देखेंगे, ठीक है। सो ऐसा क्लासिफिकेशन अपना कॉपी में बनाना अच्छा से, एंड मेक श्योर दैट यू हैव सेपरेट कॉपी फॉर बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी को साथ में मत लिखना, ठीक है, सेपरेट कॉपी बनाना। तो ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनिज्म दे आर ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये सब एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओके। So diatoms we will see first. Diatoms is important for your board exam as well as for your entrance also. Diatoms को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। So what we need to know in this chapter, we need to see the characteristics of all the organisms, the important characteristic. एग्जाम में कैरेक्टर्स पूछते हैं, कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाता है, so you need to write the characters. So first of all, the diatoms are, so I'm going to write one by one. They are photosynthetic, non-flagellate, golden brown protist। इसका मतलब they are photosynthetic, मतलब they prepare their own food with the help of sunlight and water. We call it as a autotrophs, right? Non-flagellate, non-flagellate मतलब flagellate, ये this word flagellate हम लोग देखेंगे बाद में। फ्लैजेलेट क्या होता है, फ्लैजेलेट एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऐसा रस्सी जैसा, ओके, रस्सी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है उसका बॉडी में। रस्सी निचिना এটা স্ট্রাকচার দেখা পাওঁ আমি মাইক্रो অর্গানিজমছৰ বডিত, বেক্টেৰিয়া হওক বা এনেকুৱা প্ৰটোজোৱা প্ৰটিষ্টা হওক, এনেকুৱা ৰছী নিচিনা স্ট্ৰাকচাৰ দেখা পাওঁ আমি মাইক্रो অৰ্গানিজমত। সেই কি কৰে, এই মুভমেণ্টত হেল্প কৰে, ওকে। ইট হেল্পছ ইন দ্য মুভমেণ্ট অফ the microorganism, it helps in the movement of body, it helps in the movement of their body, okay। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसको हम लोग फ्लैजेलेट बोलते हैं। किसी किसी का बॉडी में 2 होते हैं, किसी किसी का बॉडी में 3 होते हैं, किसी किसी के बॉडी में 4 होते हैं, सो इट डिपेंड्स, द नंबर वेरीज, वी विल सी दैट।
बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया में पाए जाते हैं ऐसा फ्लैजेलेट। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, रस्सी जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। वो क्या करते हैं, उसका बॉडी का मूवमेंट में हेल्प करते हैं, उसका बॉडी को दे हेल्प इन द मूवमेंट। जस्ट लाइक इन आवर बॉडी वी हैव लेग्स, पैर होते हैं हम लोग का बॉडी में जो चलने में मदद करते हैं, उसी तरह उन लोग का बॉडी में ऐसा रस्सी जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो उसका बॉडी को मूवमेंट करने में मदद करते हैं, उसको हम लोग फ्लैजेलेट बोलते हैं। ठीक है। सो नंबर वेरीज होते हैं, किसी किसी का में 1 होते हैं, किसी किसी का में 2, 3, 4, 5 ऐसा वेरीज नंबर हम लोग देखेंगे बाद में। तो डायटम्स में ये फ्लैजेलेट नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग नॉन फ्लैजेलेट बोलते हैं। अंडरस्टूड। सो दे आर गोल्डन ब्राउन प्रोटिस्ट। गोल्डन ब्राउन क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। हम लोग देखेंगे एक पिगमेंट होते हैं, वो पिगमेंट की वजह से उसका कलर गोल्डन ब्राउन दिखाई देता है। कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है वो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद। उसका पहले और एक कैरेक्टर्स ले लेते हैं, कहाँ पाए जाते हैं दिस डायटम्स, वेयर वी फाइंड दिस डायटम, वी फाइंड दे आर प्रेजेंट और दे आर फाउंड लिखना, ठीक है, फाउंड में ज़्यादा अच्छा देखेंगे। सो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। वाटर हम H2O लिख रहे हैं, तुम लोग सेंटेंस में लिखना, ठीक है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मेराइन एनवायरनमेंट। मेराइन एनवायरनमेंट शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म ही लिख देते हैं। ओके, सो कहाँ पाए जाते हैं ये? फ्रेश वाटर और मेराइन एनवायरनमेंट में पाया जाता है। ओशंस में फ्रेश वाटर और कहीं वहाँ में पाया जाता है, ठीक है। गोल्डन ब्राउन प्रोटिस्ट। Next characters, they are the chief producers of ocean. So they are the chief producers of ocean. ओशन में बहुत सारा मात्रा में पाए जाता है डायटम्स। ओके, सो इट वाज इन ओशंस, व्हेन यू go to any ocean, so you will find a large number of diatoms. So maximum number में पाए जाते हैं diatoms ocean में, इसलिए उसको बोले chief producers of ocean. Okay, it is almost covered by diatoms ocean में। So okay, oceans को almost cover किया जाता है। Next एक important characters दे रहा हूँ from entrance point of view. They are also known as chief producers of oceans. तुम लोग इसको भूल नहीं सकते। You are not allowed to forget these features. तुम लोग को ये भूलना मना है। Remember always they are chief producers of oceans. Entrance में हमेशा पूछते हैं which organisms is called as chief producers of oceans. So 4 ऑप्शंस देंगे, डायटम्स देंगे, डाइनोफ्लैजेलेट दे सकते हैं, यूग्लेना दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। सो उसको ध्यान में रखते हुए you need to write your answers. So you are not allowed to forget this sentence. Okay, तुम लोग को भूलना मना है ये सेंटेंस। You are they are also not chief producers of ocean. नेक्स्ट कैरेक्टर क्या ले सकते हैं हम लोग? डायटम्स constitute सेम सेंटेंस, सेम नहीं है, इसको नहीं लिखने से भी होगा, फिर भी लेट मी गिव यू डायटम constitute a major portion of planktonic population. Diatoms constitute the major portion of planktonic population. जितना भी वाटर में प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मात्रा में डायटम्स पाए जाते हैं। ओके,
सी वी आर डिस्कसिंग बॉटनी, तो हम लोग प्लांट्स को ही पढ़ेंगे, एनिमल्स नहीं पढ़ेंगे हमें. सो डायटम कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ प्लांटोनिक पॉपुलेशन. सो ज़्यादा प्लांटोनिक मतलब जितने भी प्लांट स्पीसीज होते हैं, छोटे से लेकर बड़ा तक जितने भी प्लांट स्पीसीज होते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा पाया जाता है डायटम्स. ठीक है. सो वी विल सी फर्दर सम मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स. So next important characters, let me write. इसको बाद में लिखते हैं. वेट इसको बाद में लिखते हैं, पहले इसका पिगमेंट के बारे में लिखते हैं. क्या क्या पिगमेंट पाए जाते हैं डायटम्स का बॉडी में. सो द पिगमेंट्स दैट वी फाइंड आर क्लोरोफिल ए. तुम लोग को पता होगा क्लोरोफिल के बारे में. पिगमेंट्स क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन, chlorophyll A, chlorophyll B, beta carotene. Apart from that, special pigment we find diatoxanthin and diadenogenthin. Diatoxanthin and diadenogenthin, ये सब है पिगमेंट जो पाए जाते हैं डायटम्स का बॉडी में. इसीलिए उसका कलर क्या होते हैं, गोल्डन ब्राउन होते हैं उसका कलर. क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट. ओके, बहुत सारा पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं प्लांट्स में. सो दिस आर द टाइप्स ऑफ पिगमेंट दैट वी फाइंड इन केस ऑफ डायटम्स. ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, रिजर्व फूड, RESR. सो डायटम्स का रिजर्व फूड क्या होते हैं, वो लोग क्या खाते हैं डायटम्स, क्या पाए जाते हैं उसका बॉडी में रिजर्व फूड. ऑयल्स एंड ग्लाइकोजन. सो ऑयल एंड ग्लाइकोजन पाए जाते हैं. ओके, डायटम्स का बॉडी में ऑयल्स एंड ग्लाइकोजन पाए जाते हैं. सो इफ द क्वेश्चन आस्क्स इन एग्जाम, राइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ डायटम्स. सो डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स गिवन, यू नीड टू राइट योर सेंटेंस इन अ पॉइंट वाइज मैनर में लिखना. ठीक है. सेंटेंस ऐसा कंटिन्यू मत लिख सकते हो, बट इफ यू राइट इन अ पॉइंट वाइज, इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एज वेल एज ईजी फॉर योर एग्जामिनर टू गिव यू मार्क्स. ज़्यादा मार्क्स पाने का चांसेस रहते हैं. ঠিক আছে, তোমালোকে পইণ্ট ৱাইজ লিখিবা এক্সামত. যদি 2 মাৰ্কৰ দিয়া থাকে কুৱেশ্যন, এটলিষ্ট মিনিমাম 3 পইণ্ট লিখিবা, মেক্সিমাম 4টা পইণ্ট লিখিবা. 4টা পইণ্টকৈ বেছি নহয়, 3টা পইণ্টকৈ, 3টা পইণ্টকৈ কম নহয়. চ' 2 মাৰ্কৰ যদি 2টা পইণ্ট লিখা, কি হয়, ফুল মাৰ্কছ পোৱা চান্সেছ কম থাকে. চ' সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব তোমালোকৰ এক্সামিনাৰৰ মুডত. এক্সামিনাৰৰ মুড যদি ভাল হয়, তোমাক ফুল মাৰ্কছ দিব পাৰে. যদি বেয়া থাকে মুড, তেতিয়া ফুল মাৰ্কছ নিদিব পাৰে. চ' বেটাৰ 3টা পইণ্ট লিখিবা মিনিমাম, 4টা পইণ্ট লিখিবা মেক্সিমাম, যদি 2 মাৰ্কৰ থাকে দেই. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, तुम लोग कंटिन्यू करना अपना नोट्स. Cell wall of diatoms are made of silica. Okay, cell wall of diatoms, उसका जो सेल वॉल होते हैं डायटम्स का, वो बनाया जाता है सिलिका से. सिलिका इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ. सो कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जाता है उसका सेल वॉल. उसको हम सिलिका बोले, सिलिका बोलते हैं उसको. इसीलिए क्या होता है, उन लोगों का सेल वॉल, इट इज़ द इंडेक्स इन द सेल वॉल ऑफ डायटम आर इंडेक्स्ट्रक्टेबल पार्ट ऑफ डायटम सेल. मतलब लेट मी राइट,
cell wall of diatoms are indestructible. Cell wall of diatoms are indestructible part of diatom. It means their cell wall is unbreakable. Why? Because the cell wall is made up of कैल्शियम कार्बोनेट। उन लोगों का सेल वॉल क्या होते हैं? अनब्रेकेबल होते हैं, टूटते नहीं उन लोगों का सेल वॉल। क्यों? क्योंकि उन लोगों का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वी कॉल इट एज ए सिलिका। ओके, जब डायटम मर जाते हैं उसका जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर होंगे बॉडी का सब डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन सेल वॉल डिकम्पोज नहीं होंगे, सेल वॉल एज इट इज़ रहेंगे, सेल वॉल कभी डिकम्पोज नहीं होंगे। क्यों? कि बिकॉज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिशियस सिलिका कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत हार्ड होते हैं। ओके, द स्ट्रक्चर हार्ड होते हैं उसका सेल वॉल। तो डायटम जब मर जाते हैं सेल वॉल ब्रेक नहीं होते, वो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। उसका एक यूटिलाइज होते हैं, it has some economy, it can give us some economy product also, this diatom cell we will see later, okay, देखेंगे थोड़े देर बाद। So याद रखना, the cell wall of diatom is made up of silica, that's why their cell wall are indestructible part of diatom cell, that means their cell wall are unbreakable, okay, वो नहीं टूटते हैं उसका सेल वॉल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो तुम लोग एक काम करना, सब फ़ोन तो यूज़ करते होंगे, स्मार्टफोन, यूट्यूब तो होंगे, यस ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी। ट्राई टू सी द इमेजेस ऑफ डायटम्स इन यूट्यूब, कैसे देखते हैं। सो ट्राई टू सी दैट इमेजेस, यूट्यूब में देखने के लिए ट्राई करो, डायटम सर्च करो, instead of watching movies and all, try to see all those education utilize your phone for education purpose, okay, don't use it for other stuff। स्ट्रक्चर दो प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं डायटम्स में, एक होते हैं पाइनेट और पिनेट और पाइनेट कोई भी हो, और एक होते हैं सर्कुलेट। सो दो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, पाइनेट एंड सर्कुलेट। पाइनेट इट लुक्स लाइक ए सॉप बॉक्स, जो साबुन वाबुन रखते हैं सॉप बॉक्स बोलते हैं ना हम लोग, उसके जैसा दिखाई देते हैं। ओके, सो ऐसा दिखाई देता है। सो लेट मी ड्रॉ ए रफ डायग्राम, ठीक है, जो समझ में आना चाहिए। सो इट लुक्स समहाउ लाइक दिस, लुक्स लाइक ए सॉप बॉक्स। আমি যে সাবন টাবন ৰাখোঁ, সাবন যে ৰাখোঁ বক্স থাকে নহয়, সাবনৰ বক্স। চ' দেখোঁতে এনেকুৱা লাগে ন। চ' দুটা টাইপত পোৱা যায়, এটা হ'ল পেনেট ষ্ট্ৰাকচাৰ, যোনটো দেখোঁতে চব বক্স নিচিনা দেখা পায়, আৰু এটা হয় চাৰ্কুলেট। ইট লুকস লাইক এ पेट्री डिश, इट लुक्स इन सर्कुलेट, मतलब क्या है सर्कुलेट, मतलब सर्कल, इट लुक्स लाइक सर्कल ओनली, दैट्स इट। सो रिमेंबर इन बायोलॉजी यू नो द नेम टेल्स इट्स मीनिंग, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, अपना कॉमन सेंस यूज़ करना, नाम में ही मीनिंग छुपा होता है। सर्कुलेट मतलब क्या है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होंगे। सो वो चाय रखने वाला क्या बोलते हैं उसको, पेट्री डिश, ऐसा प्लेट। सो somehow it looks like this, ओके। सो ऐसा दिखाए, ऐसा होते हैं सर्कुलेट, और वो सब बॉक्स जैसा दिखने वाला भी होते हैं पिनेट। Wait, there's one more. We have said that the cell wall of diatoms are indestructible part of diatom cell because their cell wall is made up of calcium carbonate, right? जब डायटम मर जाते हैं उसका सेल वॉल नहीं टूटते, ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो उसका एक यूटिलाइज होता है, यूजेस होते हैं उसका। ओके, हम लोग देखेंगे, सेल वॉल को देखते हैं। सेल वॉल कैसे होते हैं, सेल वॉल का स्ट्रक्चर को देखते हैं पहले। डायटम्स का सेल वॉल का स्ट्रक्चर को देखते हैं। इट हैज़ ए अपर सेल वॉल, उसका नीचे में और एक सेल वॉल होते हैं। ऐसा होता है, अपर सेल वॉल एंड बिलो सेल वॉल।
So upper cell wall is known as epitheca. The cell wall which is at the bottom below is known as hypotheca. एक चीज़ और याद रखना, in biology whenever we come across a word epi, remember it means always above, हमेशा ऊपर कोई भी हो, above of something. Okay, whenever we come across a word hypo, always remember it is below, something is below, epi something is above. तो cell wall ऐसा होता है उन लोग का. So what happened? Their cell wall is made up of calcium carbonate, right? So जब डायटम्स मर जाते हैं तो सेल वॉल टूटते नहीं, वो एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगे, लेकिन उसका अंदर का जितने भी चीज़ होते हैं इंटरनल ऑर्गन सब डिकम्पोज हो जाएंगे, सेल वॉल एज इट इज़ ऐसे रहेंगे. तो व्हेन न्यू डायटम्स अगेन डेवलप्स, इट डेवलप्स above the depth of the diatom. जो डायटम्स मर चुका है उसका ऊपर में अलग डायटम्स फॉर्म करते हैं. सो अगेन ए न्यू डायटम्स डेवलप. ओके, ये डायटम्स मर चुका, सेल वॉल एज इट इज है. नाउ व्हेन न्यू डायटम्स अगेन फॉर्म, दे फॉर्म जस्ट अबव द प्रीवियस डायटम. सो ये मर गया, सेल वॉल एज इट इज रहेंगे, फिर से नया डायटम्स फॉर्म करते हैं उसका ऊपर. सो इट्स गोज ऑन. So a layer is formed, layers after layers after layers. पहले तो ये डायटम्स था, मर गया, लेकिन सेल वॉल रहेंगे बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. जब नया डायटम्स फॉर्म होंगे तो उसका ऊपर में फॉर्म होंगे. ये भी मर गया, अगेन व्हेन न्यू डायटम्स फॉर्म, उसका ऊपर में फिर डायटम फॉर्म होंगे. सो ऐसा चलते जाते लेयर्स फॉर्म करते हैं. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटोमेशियस आर्ट बोलते हैं. जो मर चुका है डायटम्स लेकिन है एज इट इज सेल वॉल, उसको हम लोग डायटोमेशियस आर्ट बोलते हैं. अंडरस्टूड? दोज डायटम विच आर डेड and it is in the form of a layer and remain as it is, we call that diatoms as a diatomaceous earth. Okay, इसका uses होते हैं, इसका uses होते हैं, ये diatomaceous earth का uses होते हैं. It is used, पहला uses देखेंगे, in the manufacture of metal policies. It is used in the manufacture of metal policies, toothpaste, tooth powder. So इसका कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है? मेटल पॉलिशेस में यूज़ होते हैं, टूथपेस्ट में यूज़ होते हैं, टूथ पाउडर में यूज़ किया जाता है. और एक इसका यूज़ है, it is also used in the filtration of oils and syrups. So oils and syrups को filtration में भी यूज़ किया जाता है. और एक uses है, it is used in manufacture of insulating bricks. ठीक है? So these are the uses of diatomaceous earth. What is diatomaceous earth? The diatoms which are in the form of layers and that already those diatoms we call it as a diatomaceous earth, and it has various uses. What are the uses? These are the uses of it. So these are all about diatoms. Okay, golden algae क्यों बोलते हैं? Because of the presence of a pigment chlorophyll A, B, beta carotene and diatoxanthin and diadinoxanthin, and they are the chief producers of ocean. That's why we also call it as a jewels of plant kingdom. Cell wall is made up of calcium carbonate, that is silica. That's why it is an indestructible part of diatom cell. The cell wall never breaks even if the diatom dies. Okay, so this is all about diatom. So next video lecture we will see another example.